Jai Sadgurudev, and a very good morning to all of you. My name is Ravi Shankar, and I have joined this satsang from Austin, Texas. Welcome to weekly English satsang organized by North American Institute of Vihangam Yoga. I am sure everyone here would agree that in the present age, our daily lives completely revolve around just fulfilling our physical, mental, and family and social responsibilities. In this fast-paced routine life, the requirement of soul are often neglected. So first, I would like to congratulate each one of us for taking some time from our busy schedule to fulfill the requirement of our soul through this satsang. Now we are going to move to the core segment of our satsang, that is a uh, VY talk. We call it as a Vihangam Yoga talk. And today we are going to talk about Seva. It is my privilege to introduce our esteemed speaker Sri Lalmani ji, whose profound understanding of Sadhu Sarafal Devji Maharaj's teachings illuminates the path of Vihangam Yoga. To guide us on this enlightening journey, let us explore the human and the spiritual significance of Seva, what it truly means, why it is vital for our spiritual growth. The derived meaning and the roots from the roots of Sanskrit, the meaning of seva is to serve or to attend, embodies selfless service, action performed with purity of heart, free from any desire for reward, recognition, or personal gain. In the context of Vihangam Yoga, seva is not merely an act, but a transformative practice that aligns the soul with divine purpose. As taught in Surved and exemplified by our Sadguru. Today we will dive deep into the essence of Seva, exploring its role as a cornerstone of a spiritual evolution and its power to purify the mind, transcend ego, and foster unity with the divine. This will be an interactive session, so I encourage everyone to engage, share your questions, insights, and reflections after Sri Lalmaniji's discourse. Without further ado, I respectfully invite Sri Lalmaniji to share his wisdom and guide us through the profound significance of Seva in Vihangam Yoga. Over to you, Lalmaniji. Jai Sri Gurudev. Can you guys hear me well? Yes, yes, yes. Thank you, Raviji, for giving me this opportunity. Before I say anything on today's topic, which is Seva, I would like to bow down to the feet of Sadgurudev with this prayer. बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बार निहोर So, first of all, I would like to thank Ravi ji for
yeah, for giving this very good hosting. I truly, that's what I was about to say. I don't know who somebody has already commented this, but yeah, thank you, Ravi ji. This is really great hosting. And Ravi ji, before I start, also I would like to know how long time I have. Actually, I'm sorry, I don't know that full time length for me. I think we can go with 20 minutes from now. Okay. And then at the end, like Santi part will take another 5 minutes. So it will Well, be around like most likely till 10:20, but okay. we have to wrap it up. Let's target 10:15. Okay. All right. Thank you. Thank you. So, today's topic is seva, and I'm sorry, but I'm not well prepared to talk on this topic. So I'll be just randomly maybe switching gears here and there. But when it comes to know about seva, I think uh, you know the most suitable place to understand about seva is when there is an event to be organized. Okay, whenever there is an event, then you can truly see who is doing what kind of seva. And recently, we all know that when Acharya Parivar was here in USA and also went to other places, but especially when I was attending this New Jersey event, I was fortunate to meet few people and observe their seva bhav. um, I'm today I'm not kind of more talking about those kind of a veteran people or those people who are already well known. We know about Vijay ji, Raj ji, Yogesh ji. These people are already in seva. So I'm not talking about those people, but I'm talking more about the other folks whom I got opportunity to meet and kind of stay together, watch them how they're doing. And I was really surprised with a few people. I'll just noted down some of the names. I don't remember everybody, but some of the names I noticed was like um, Abhishek ji, I noticed Pradeep Kushwaha ji, Manoj ji, Srirang ji, Vishnu ji, Utkarsh ji, Suruchi ji, Ravi ji himself, Dipti ji, Surya Alam Raju ji, Neetu ji, Naveen ji. These folks were, doing seva with their heart and not necessarily, those seva for which he need a kind of respect or recognition or maybe some clapping, not like that. Some of the instances where when I saw that, I was really surprised that I think all of us should inculcate these kind of seva bhav. And again, I'm just talking about just a New Jersey event. I know events happen in California, in Canada, in Chile, and there were other folks also. They did a remarkable job, but I'm primarily talking about those whom I personally saw. And I think in order to understand more about seva, maybe I'll just give some of the um, real incident, like kind of sansmaran, which will basically dive deeper into seva bhav. What kind of seva bhav actually is loved by Sadhguru, right? So, for example, one of the sevika was Usha ji. She came from, I think, Europe, Germany, somewhere. And she started kind of uh, being in seva in this trip from California itself. But when she came here in New Jersey, um,
I came to know certain instances which really enlighten us. One of them were like, first of all, she was here in USA, which is kind of a foreign land for her. Her passport, visa, credit card, everything was not from USA, right? She doesn't have much um, kind of comfort here. But when she especially I saw like when she came here in New Jersey, she was staying in Acharya Nivas with Mataji Adesh. But she never complained about anything. She was primarily focusing on what Adesh she's getting from Acharya Parivar. And following those Adesh, sometimes these kind of sevak uh, become very impractical. Okay, when I say impractical, that doesn't mean that willingly doing impractical stuff. It is more like the way they take the adesh from other angles, it appears to others that okay, that person is very impractical. So one of the example was like Mataji told Usha ji to buy some grocery, right? That okay, can you get some grocery? Uh, like in Achar Nivas, like lot of Guru Bhais were staying every time, right? Just to help support anything needed. But she did not take help from anybody. She got the Adesh and she was in the grocery store. Nobody knew actually. Fortunately, Vijayji was in the same grocery store for some other purpose. So when he noticed, he approached to her and said, "Oh, you are here. So okay. So what you're buying? Maybe no, I can help you." She denied that. She said, "No, I'll do it by myself." Then Vijayji offered her that, okay, hey, but how did you come here? Because from Acharni was it's not a walking distance, and you don't have a car, you don't drive it. So, how did you come here? She said, I just took Uber. So, like hearing that, he was surprised that there definitely must be so many people in the Acharni was, but she did not take any help from anybody, and she just followed the instruction. She just directly went to the grocery store, bought the stuff using her own credit card, and then actually went back by herself. Now the question comes like even I practically when I see, I start feeling like okay, why she did not take, kind of take help from anybody, like somebody could have dropped her to the grocery store or picked up. But no, I mean, for her it was just the adesh and to complete it, irrespective of whether there is anybody to help or not. She did not took help from anybody, right? At the same time, when the help was also offered, she kind of rejected, because she thought, okay, the adesh was for me, so I have to complete everything by myself, right? So it's kind of a I was really surprised. And not only that, when you do seva, such kind of seva, the other thing is like sometimes including me, when I do seva, I try to show it to others that hey, I'm doing seva, kind of show off. But she was nowhere close to that. I mean, nobody knows what all kind of seva she has done in during that stay, and not only that, that kind of person would never complain. That was another amazing
thing, never complain. I mean, these kind of people are such that, when you ask them, then they will, they might say something. Like one day, actually, Anjali ji asked her, so, Usha ji, like, where do you sleep? You were staying in this Achar Nivas, but there is no bed for you. So, where are you sleeping? Because everybody was surprised that, if there is no place, where does she sleep every night? And she is not just staying for a day or two. She happily said, no, Anjali ji, you know, there is a cabinet. So I just go inside the cabinet, and then, I just sleep there. So no bed, no pillow, nothing, no, a blanket, nothing like that. And just she sleeps very happily. In fact, when, Anjali ji was talking to her, she also offered her to Anjali ji that, Anjali ji, you also, should sleep on the floor in that same cabinet. It's very relaxing, and you feel grounded, right? So these are just one or two small instances which kind of opens up our eyes, that when we go for any seva, especially achar seva, or just in general any seva, sometimes we try to find the comfort that, okay, if I'm in achar seva, okay, do I have bed to sleep or not? Do I have cars to drive or not? Do I have anybody to help me or not? But she was kind of well beyond, above and beyond, to that level. So somehow I felt that, I think we also should inculcate those good seva bhav. Those are very important. I'll tell you one more sansmaran, which is maybe few of you might have heard about it. This is the sansmaran of, I would say, a great disciple, a long time back in India. So one day, actually, Mataji told him to bring curd, dahi. Okay. So the Sish, basically, and I don't remember the exact name, so I'm not quoting the name, but he actually went to the Gwala, right? The milkman, to find if they have curd or not. So he kind of searched to so many places, but the time was such that nobody had the curd available at that time, right? So, I mean, when I place myself in his shoes, and try to understand what would my behavior would have been in that situation. I always feel that, okay, so Mataji told me to go get the curd. I will go to, and again, I'm imagining still in India, right? In India scenario, I go to few places. Okay, I couldn't find the curd anywhere. Maybe I'll come back and tell Mataji, Mataji, I could not find the curd. I'm sorry, right? But what that gentleman did, he actually, his adesh, I mean, he got the adesh to get the dahi, so he has to get the dahi, the curd, right? What happened that, slowly, the day kind of started ending. It became night, and Mataji was looking for him. Where this guy is? I told him to bring curd, and now looks like he's hiding or what? I don't know. He's no more in the ashram. Then finally, that guy came back the next day morning, right? When that guy came next day morning, and stood in front of Mataji, saying, Mataji, I'm here.
Then Mataji kind of started, being impatient. Actually, she was impatient. So she started telling, "Where have you been whole night? I was looking for you." So on that note, then the Shishya said that, "Mataji, I went to bring the curd for you." So, like, everybody was shocked. What does it mean? Like, he went yesterday, he's coming today. So what happened in this time gap? So then he explained that, Mataji, because there was there was no curd available, so I basically took the milk from the milkman, and I put it to become curd. So I was just waiting when the curd will be ready, then I will go and give it back to Mataji. So just imagine that, the seva bhav that he had. See, for a person like us, maybe we could have put that milk to like ferment to curd, and might have come back, and maybe we might have told to Mataji that, "Mataji, I could not find dahi, so I just put it, probably by tomorrow morning it will be available, and then you can have it." But no, he did not do that. So again, the same kind of scenario here also happened. Became impractical, right? So he waited and waited until that milk turned into curd, and then finally came back to Mataji. So this kind of seva bhav, again, it is not because you know he wanted to be impractical, right? It is more of like, okay, he got the adesh, and he's just, his aim is to follow that and complete that. See, other than that, he did not had any other adesh. So for him it was just to bring the curd. So he kind of spent the whole night just waiting for that adesh to complete. So in a way, I'm kind of trying to say that seva bhav number one is a great, I would say, pillar in this spiritual journey. But the level of seva bhav also, we should kind of grow in this bhav. I know many of us, we are already in seva, and whatever time we do, we are doing that seva. But I think right now we are not at that level for which at which Swamiji or Acharya Parivar would become so happy. And the other thing I wanted to share is that none of the seva is cheap or lowly. Okay, so sometimes even me, we feel that, okay, maybe doing seva to Acharya Parivar, maybe say doing malish to Swamiji would be great seva, right? But that's not the case. I think we should always think that any kind of seva, whether it is something of low nature, or something of staying with Acharya Parivar, or maybe sitting with Mataji or Swamiji, I think we should not look for kind of a niche seva. There could be seva where maybe, okay, we might have to just broom the floor, we might have to clean the toilet, we might have to just clean the dishes, we might have to just any lowly stuff can be a seva. So definitely we should not always think that, okay, I want to do seva only of this kind of nature, maybe walking with the Swamiji, that is the seva. No, that's not the seva. I think um, we need to be very, very clear that any adesh, that we got directly or indirectly,
from Acharya Parivar, I think, is seva. Whether it is of whatever nature, it doesn't matter. So definitely, uh, I would advise everyone, including me also. I also have to learn that um, any task that's been given to us is a seva, and we should always think. I think many of us, definitely, I know people joined here, they must have either be in the job or must have done job in past, so somewhere in the back of mind, we should have a kind of a mentality where, the way we do our job, we go to um, office, or whatever, we work from home, whatever it is, but we keep doing some task, we work on different projects in the company, right? And as long as you are working, as long as you are part of any project, you feel safe. You feel safe that, okay, your job is secure. You are getting the paycheck, every whatever time interval you are getting the paycheck for. So as long as you are in the project, you are getting the paycheck, right? The moment you are out of the project, you are on the bench, you are not working on anything, a fear start lingering to our mind, right? What kind of fear? That, hey, for maybe last 3 months, 5 months, 6 months, year, I have not been assigned any task in my company, so if you not been doing any task, you are not involved in any project in the company, you always develop this fear that, okay, soon this company is going to kick me out, soon my paycheck will stop, right? So when we have this kind of understanding while working in a company, I think we should also develop the similar mentality, similar bhav, being in Vihangam Yoga organization. And that includes me also. I'm also part of the same. I also kind of, I'm telling to myself that, if you are not doing any seva, then it should generate a fear that, if I'm not doing any seva, definitely I am not going to get the paycheck, which means I'm not going to get the blessings from Sadhguru. If I'm not in any project, if I'm not doing any seva regularly in Vihangam Yoga, then soon my sanskara will kick me out from this spiritual journey. So I think somewhere we, all of us, should have this feeling that seva is very much equivalent to getting the project, or getting the task to do, and that is a string through which you are connected to this spiritual journey. You are connected to this Vihangam Yoga path. You are connected to this Achar Seva, or you're connected to any kind of seva. The moment we don't do seva, we cut loose that string, and we are kind of free, where any bad sanskara can immediately come up and take you away from this spiritual journey. And I'm sure most of us might have felt this, but I think all of us at the same time should definitely have to build this kind of bhav, because many of us, we notice that, okay, when Swamiji comes, then we become active. When Swamiji left the country, then we are back to square one, and start engaging ourselves in family, job, hobbies, whatever it is.
I'm not saying that those things are not needed. Definitely, we need to put effort on those as well. But as Swamiji says that you should make an effort, to take out some time, for seva, because seva is one of the strongest pillar in the spiritual journey. Once you inculcate the seva bhav, then Swamiji is there to help you, guide you, and take you to unimaginable, journey. I would say that, those who have been in this, journey for a long time, who have been doing seva for such a long time, they must have experienced. I mean, and when you start kind of observing those people, you'll be really surprised. Especially, I mean, I myself, try to see, and notice those people. Like in recent trip, I came to know that Sudhanshu ji was in Achar Parivar Seva for such a long time. First of all, being in Achar Seva is not a piece of cake. It requires, I would say, that whole, years and multiple years of kind of strengthening yourself and developing those seva bhav. Then only you can stick or stay in the achara seva. Otherwise you always feel that you failed to do the seva, right? So Sudhanshu ji was one of the example where he stayed for such a long time in achara seva. He traveled to all those places. uh, of course, physically it was not, being in comfortable zone. On top of that, he also had a pain in his leg. Nobody knew that. So and he didn't tell to anybody also. He never disclosed this. So in a way, what I'm trying to say is that I think there I would say so many parameters, where we should refine ourselves, enhance ourselves, make a better sevak. That's definitely needed from all of us. And I feel myself I'm the worst in it. I have all the demerits, all the kind of bad sanskara that show up every time. So anyway, I see the clock and I think I should stop myself. I would thank everyone for listening to me, and if I have done anything, if I have said anything wrong, I apologize, and thank you very much. Back to Raviji. Yeah, thank you, Lal Maniji. Yeah, it was very refreshing, and learning from Sansmaran is a very correct example for all of us. It's actually correct our thinking process. So if anyone have any questions with respect to seva, you can ask some questions. Or is there any new joinee today? Anyone who would like to introduce yourself? Jai Sadgurudev. Good morning. Yes. Good morning. Thank you so much for Lal Maniji listening to the Sansmaran. That was wonderful. I wanted to introduce that NP uncle is also on the line. And NP uncle, I think many of you may know that he is currently in Bay Area in California. And NP uncle, do you want to say a few words? Maybe if you can unmute yourself. जय सदगुरुदेव निरंजन जी और जी जय सदगुरुदेव। सबको जय सदगुरुदेव जो इस सत्संग में आज शामिल हैं।
तो क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो first I wanted to introduce you and if you have some words to share, words of wisdom from Swarved on Seva, please share that with us. And also, I wanted to request that maybe we can also resume the Saturday satsang, the Hindi satsang, where Uncle Ji can also participate in that. Yeah. So, Uncle ठीक। Ji, if you can share few words of wisdom on the seva, that will be, because that is what Lal Ji was talking about. That will be very helpful. जी. लालबनी जी का बड़ा अच्छा लगा सुनकर। उन्होंने सेवा पर दूसरे का अनुभव और अपना अनुभव जो भी इन्होंने बताया। सेवा जो है, जो भी शिष्य है, सबको सेवा करनी चाहिए। देखिए, अध्यात्म में कहा गया है कि जीवन के 4 रत्न हैं: धैर्य, विवेक, क्षमा और शांति। ये सब पर लागू है। जो सद्गुरु शिष्य नहीं है, जो सद्गुरु शिष्य है, जो धार्मिक है, जो धार्मिक नहीं है, सबके जीवन में जो भी मनुष्य प्राणी है, उसके जीवन के लिए ये 4 रत्न बताए गए हैं। लेकिन सद्गुरु का जो शिष्य है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, यह मेरा अपना मत है, कि उसके जीवन के लिए 3 ही रत्न हैं: साधन, सेवा और सत्संग। बताया गया है। अब रात दिन हम लोग अमृत वाणी में, दिव्य वाणी में और जहां तहां सत्संगों में बराबर सुनते हैं कि साधन, सेवा और सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। तो इसमें साधन, सेवा और सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण जो है सेवा है। अगर आपके अंदर सेवा का गुण है तो आपकी प्रगति साधना में भी होगी और सत्संग के प्रति भी आपकी अभिरुचि जो होगी वह तीव्र होगी। इसलिए सेवा को सबसे पहले प्राथमिकता सेवा की है। और मैं सेवा के बारे में कहना ये चाहूंगा कि सेवा जो है वह सद्गुरु और शिष्य के बीच में सेतु का काम करता है। सेतु है। जिस तरह से नदी पार करने के लिए नदी के ऊपर पुल बना दिया जाता है तो आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से शिष्य और सद्गुरु के बीच में सेवा एक सेतु है। इससे क्या लाभ है कि आप सेवा जब करेंगे तो आपकी चेतना गुरुमुखी रहेगी। आप कभी भी मनमुखी नहीं होइएगा या संसार की तरफ आपकी चेतना नहीं भागेगी। ठीक है, संसार में हम लोग रहते हैं, संसारिक कुछ कार्य हैं, उसका भी निर्वहन हमको करना है, लेकिन आपकी दशा उसी तरह से रहेगी जैसे हम लोग सुने हैं भजन में ना कि एक पनिहारिन थी और अपने माथे पर पानी का घड़ा लेकर के चलती थी। उसकी सूरती कहाँ रहती थी? उसकी सूरती जो है चलती थी, बात भी करती थी अपने सहेलियों से, लेकिन उसकी सूरती सदा अपने घरे पर रहती थी। उसी तरह से आप जब सेवा करेंगे या कोई भी सेवा करेगा तो उसकी चेतना सांसारिक कार्यों के साथ साथ उसकी चेतना सद्गुरु की तरफ उन्मुख रहेगी। आप सद्गुरु की तरफ उन्मुख रहिएगा, आपकी चेतना गुरुमुखी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर जो सेवा का भाव है, इसी से आपकी चेतना को एक नई दिशा मिलेगी कि हमें बराबर सद्गुरु की सेवा करनी है, हमें यह कार्य मिला हुआ है, हमें यह आज्ञा मिला हुआ है, आदेश मिला हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। तो बराबर आपकी चेतना सद्गुरु की तरफ रहेगी। इसलिए सेवा जो है सद्गुरु और
शिष्य के बीच में सेतु का काम करता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी सद्गुरु का शिष्य है उसको यह समझना चाहिए, हम आप सभी सद्गुरु शिष्य हैं, सभी आदमी साधन सेवा सत्संग में लगे हुए हैं, सत्संगों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत सा कार्य भार मिलता है। तो सेवा को कभी भी भार नहीं समझना चाहिए, सेवा को सौभाग्य समझना चाहिए। यह आपका बेस्ट लक है, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। तो सद्गुरु जो होता है वह सेवा का अवसर प्रदान करके शिष्य को एक मौका देता है कि आप कैसे अपने आप को बिल्डअप करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सेवा एक सौभाग्य है, सेवा को कभी भी भार नहीं समझना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा विपरीत अपोजिट एस्पेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग क्या हैं कि जैसे कुछ कहा जो जाता है तो वे नहीं करते हैं या उनसे नहीं होता है। तो आप क्या समझते हैं कि सेवा जो आपको दिया गया किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो वह कार्य नहीं होगा? अरे आप सेवा नहीं करेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए तो दूसरा कोई आकर कर देगा। यहाँ तो रेस लगा हुआ है, रेस में सभी आदमी हैं। थोड़ा सा स्पीड आपको कम हुआ, आपकी गति धीमी पड़ गई, तो आपके पीछे वाले जो हैं आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए बराबर सेवा में प्रतिस्पर्धा रहना चाहिए कि हमको यह सेवा मिला हुआ है, जो भी सेवा मिला हुआ, धन काया मन वचन से, स्वामी जी तो स्वरवेद में कहीं दिए हैं सेवा के प्रकार पर कि धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव। मान लीजिए हमारी उम्र 75 साल की हो गई, मैं 75 साल से ज्यादा भी हुआ हूं, तो आश्रम पर मैं जाता हूं तो मेरा अब शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि मैं कुदाल चला सकता हूं। लेकिन मैं कुदाल नहीं चला सकता हूं तो अन्य जो दूसरे प्रकार की सेवा है वह तो मैं कर सकता हूं ना। तो स्वामी जी ने कितना अच्छा सुअवसर प्रदान किया है कि जिससे जो सेवा, एक बार स्वामी जी से हमको बात हो रही थी सेवा के बारे में, तो स्वामी जी भी इस बात को बोले, स्वामी जी इस बात का समर्थन किए कि सभी व्यक्ति सब तरह की सेवा नहीं कर सकते हैं, जिस तरह का है उसी तरह का सेवा वह कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सद्गुरु के शिष्य हैं और सेवा में बहुत आगे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन सद्गुरु की सेवा में आगे हैं। इसलिए आगे हैं कि वे शरीर से सेवा करते हैं, शरीर से आश्रम में जाकर कुदाल चलाते हैं, शरीर से पौधारोपण करते हैं, शरीर से सिंचाई करते हैं, शरीर से भोजनालय में जा करके खाना बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, चावल धोते हैं, सब्जी काटते हैं, यह भी तो एक सेवा है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति जिस तरह से है, मान लीजिए आपके पास धन है, आपके पास तन नहीं है, मन नहीं है, तो आप धन से सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा करेंगे वह भी एक सेवा का प्रकार है। इसीलिए स्वामी जी ने हम लोगों को इस तरह का सेवा का प्रकार प्रदान कर दिया है कि धन काया मन वचन से संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन हो अनुरागी गुरुदेव। तो आरत दीन अधीन होकर के सेवा करना चाहिए। स्वामी जी की दूसरी पंक्ति में जो ये भाव है, आप सेवा करके सेवा को भूल जाइए कि हमने ये सेवा किया है। आप कभी भी उसको याद मत रखिए कि मैंने इस सेवा को किया। मैं आपको अपनी बात के समर्थन में आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2001 में मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष था और अध्यक्ष पद पर जो होता है, ऐसे भी स्वामी जी का जहां भी कार्यक्रम होता है या स्वामी जी जहां भी उस राज्य में जाते हैं, अध्यक्ष को स्वामी जी के साथ रहना पड़ता है। तो मैं स्वामी जी के साथ सेवा में था 2001 में।
एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने कुछ आदेश दिया था और वह आदेश हमारे लिए था कि इस तरह से वो आश्रम निर्माण के संबंध में था कि आश्रम का एक निर्माण होना चाहिए पटना में और इसमें सभी शिष्यों के सहयोग से वह आश्रम बनेगा। तो मैंने इस स्वामी जी की घोषणा को संत समुदाय में प्रचारित किया। तो स्वामी जी के पास एक कार्यक्रम के दौरान हम एक जगह पर बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति एक चेक लेकर के आए। लालमणि जी चेक की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे वह प्रसंग याद पड़ गया वह। तो एक व्यक्ति चेक लेकर के आए और चेक पर कुछ रकम उनका लिखा हुआ था। वे चाहते थे क्या, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। हालांकि सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे स्वामी जी की सेवा में आश्रम निर्माण के लिए कुछ राशि देना है, मैं स्वामी जी के चरण पर देना चाहता हूँ। तो पहले तो मैंने कहा कि स्वामी जी के चरण पर देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए मुझे और स्वामी जी का दर्शन कर लीजिए। लेकिन उनका भाव कुछ और था। वे चाहते थे कि हम चेक पर जो रकम लिख करके आए हैं, ले आए हैं, उसको स्वामी जी एक बार देख लें, ऐसा उनके मन में भाव था। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आपका ऐसा भाव है तो आप स्वामी जी के समक्ष चेक को प्रस्तुत करिएगा। स्वामी जी की तरफ वह चेक दिखाते थे, लेकिन स्वामी जी उस चेक की तरफ देखते ही नहीं थे। देखिए कैसा उनका भाव था। उनके भाव को स्वामी जी समझ गए। सद्गुरु अंतर्यामी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सद्गुरु के सन्मुख आप जब भी जाएं, आज मैं दिन में निरंजन जी से बात हो रहा था तो मैंने इस बात को उनके सामने कहा कि स्वामी जी के पास, ये सबों के लिए मैं यह बात कह रहा हूं, मैं अपनी भी बात, हमारा जो अनुभव है, तो कभी भी आप स्वामी जी के समक्ष जाइए तो निर्विषय होकर जाइए। आपके मन में किसी तरह का ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए कि स्वामी जी की सेवा हमने ऐसा किया है, स्वामी जी से ऐसा, स्वामी जी ऐसा हमको कर देते या ऐसा कुछ कह देते, इस तरह का भाव लेकर नहीं जाइए। स्वामी जी के सामने दीनहीन अधीन बन करके जाइए। पटके मटकी मान के ताघट गुरु कर बास, स्वरवेद में पंक्ति है, आप बराबर इसको याद करते कर रखिएगा। पटके मटकी मान की दीन अधीन गरीब है, और उसके आगे की पंक्ति नहीं याद है, लेकिन दूसरी पंक्ति यही है कि पटके मटकी मटकी मान की ताघट गुरु कर बास। आप मान सम्मान की मटकी जो माथे पर आप रखे हुए हैं, उसको तो आप पटक करके उसको आप फोड़ दीजिए ताकि वह फूट जाए। यानी कहने का मतलब कि मान सम्मान आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सद्गुरु से मान सम्मान की क्या आवश्यकता है? सद्गुरु तो ऐसे ही आपकी आवश्यकताओं को समझ रहा है। तो वह व्यक्ति जो थे, उस चेक को बार बार स्वामी जी की तरफ दिखा करके और स्वामी जी की तरफ देखते थे और हमारी तरफ भी कभी कभी देखते थे। वे चाहते थे कि मैं स्वामी जी को कह दूं कि स्वामी जी देखिए यह चेक ले आए हैं, लेकिन मैं स्वामी जी के भाव को समझ गया। आप जब सेवा करेंगे ना, लगातार सेवा में रहेंगे, तो स्वामी जी के भाव को भी आपके अंदर समझने की योग्यता हो जाएगी कि हमारा स्वामी क्या चाहता है। तो मैं स्वामी जी के भाव को समझता था। स्वामी जी देखना नहीं चाहते थे और वे चाहते थे कि दें, स्वामी जी देखें हमारे चेक की तरफ। अंत में स्वामी जी उनकी तरफ देखे भी नहीं और न उनसे कुछ बात किए, उनका नाम तक नहीं पूछे, और अंत में वह चेक स्वामी जी के चरण पर रख करके चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेवा करके, सेवा के संबंध में आप कभी भी इसको अपने हृदय में या दिमाग में स्मरण नहीं रखें कि मैंने यह सेवा किया है, मैंने इतना सेवा किया है।
आप सेवा करते जाइए, सेव्य भाव सेवक रहे, भव उतरे भव निधि पार। स्वामी जी लिखे हैं ना स्वरवेद में कि सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। सेवक के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर सेवा का भाव कितना है, और आपके अंदर और कोई भ्रम और संशय नहीं होना चाहिए। भ्रम और संशय जहां भी आ गया तो समझिए कि आपका श्रद्धा भाव जो है उसमें गांठ डाल देगा वो। जो भी शिष्य है, सद्गुरु के प्रति एक श्रद्धा होती है शिष्य के अंदर, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि भ्रम आ जाता है, संशय आ जाता है। तो जैसे ही संशय और भ्रम आएगा, सबसे पहले एक कुठाराघात करता है आपकी श्रद्धा पर, आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अन्य भ्रम संसार में किसी भी तरह का संसार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। सूझे वार न पार, सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। अन्य भ्रम संसार में सूझे वार न पार। किसी भी तरह का संसार का भ्रम नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर सबसे पहली योग्यता होना चाहिए कि सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव यदि आपके अंदर रहेगा तो आपके लिए ही स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं वे कि उतरे भव निधि पार। वही शिष्य सेवक जो है इस संसार रूपी भवसागर से उतरने के लिए उसके अंदर योग्यता बनती है। इसलिए सेवा जो है, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए कितना बड़ा महत्व है कि आप सदगुरु की, हमारे हम लोग के स्वामी जी का जो स्वरवेद है उसमें आप उस दोहे को पढ़िए, जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाही। देखिए क्या कहते हैं, सेवा एक तरफ कहते हैं कि सेवा गुण होना चाहिए, और यदि सेवा गुण नहीं है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाही, तो अधिकारी वह नाही है, कर उपदेश न ताहि। यदि उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है तो उसको उपदेश मत करो। यहां तक स्वामी जी लिखे हैं कि बहुत गुण उसके अंदर है, वह बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनवान है, बहुत उसकी ख्याति है संसार में, लेकिन सेवा का भाव उसके अंदर नहीं है, तो कहते हैं कि सब बेकार है। सेवा गुण विद्यमान है, अन्य सकल गुण नहीं। ठीक उसके विपरीत की पंक्ति है, विपरीत का दोहा है कि सेवा गुण, एक तो सेवा गुण यदि नहीं है तब क्या होगा, तो सेवा गुण नहीं है तो उसको वह अधिकारी नहीं है उपदेश का। और कहते हैं कि यदि उसके अंदर सेवा गुण है तो स्वामी जी कहते हैं कि सेवा गुण विद्यमान है। यदि सेवा गुण उसके अंदर है और अन्य सकल गुण नहीं, और बाकी कोई गुण नहीं है उसके अंदर, तो सारे गुण उसके अंदर अपने आप मतलब कि विद्यमान हो जाएंगे, अधिकार। और तब क्या है कि कहते हैं कि हाँ वह अधिकारी है उपदेश का, उसको आपको उपदेश करना चाहिए। अधिकारी उपदेश का आप गुण आही। ठीक है उसके अंदर सेवा गुण नहीं है, सेवा गुण केवल है और अन्य गुण नहीं है, तो अन्य गुण अपने आप आ जाएंगे, सेवा से आ जाएंगे। सेवा से वह साधन भी करने लगेगा, सेवा से सत्संग करने लगेगा, सत्संग से उसके अंदर विवेक पैदा होगा, और विवेक पैदा होने से उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और सद्गुरु के प्रति वह उन्मुख हो जाएगा, उसकी चेतना गुरुमुखी हो जाएगी। यही सेवा का भाव है। इसीलिए बराबर इस सब पंक्तियों को याद रखना चाहिए कि सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार, अन्य भ्रम संसार में सूझे वार न पार। जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाही, अधिकारी वह नाही है, कर उपदेश न ताहि। फिर इसके विपरीत की पंक्ति को भी याद रखना चाहिए, सेवा गुण विद्यमान है, अन्य सकल गुण नाही, अधिकारी उपदेश का आप गुनाही। माने जितने भी गुण हैं उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। सेवा जीत सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबारा,
स्वामी जी ने तो सेवा के ऊपर स्वरवेद में इतने दोहा लिखे हैं, जगह जगह पर सेवा और सत्संग जो पंचम मंडल के पंचम अध्याय में है उसमें तो है ही, लेकिन अन्यत्र भी सदगुरु में स्वरवेद में जहाँ तहाँ सेवा के बारे में लिखा हुआ है। बहुत सी बातें सेवा के संबंध में लिखी हुई है। सेवा जीत उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य नहीं होए। सेवा जीत जो है उसको, जो सेवा में उत्तीर्ण हो गया तो उसके सामने संसार की उपलब्धियां क्या है? मुक्ति ताहि पीछे फिरे। कहते हैं स्वामी जी, मुक्ति ताहि पीछे फिरे सदगुरु सेवक सोए। उसके पीछे तो मुक्ति ऐसे ही पीछे पीछे रहेगी। इसलिए मुक्ति और भक्ति के बारे में आपको सोचना नहीं है, आप केवल सेवा को अपने अंदर उतार लीजिए और इसके लिए सेव्य भाव सेवक रहे। आपके अंदर जो सेवक है उसके अंदर सेवा का भाव जरूर रहना चाहिए। तो मैं यह चाहता था कि सेवा के बारे में आपको कहूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आज सेवा का जो रखा था इस सत्संग में सेवा पर परिचर्चा। तो लालमणि जी का भी बहुत भाव अच्छा रहा, आपने बहुत सेवा के ऊपर अच्छा बोला। और दूसरी बात यह है कि स्वामी जी देखिए, कोई कोई पूछते हैं क्या प्रचार में कि सब सेवा में क्या करो। जो नए नए जो शिष्य होते हैं वो पूछते हैं, जब हम लोग उपदेश करते हैं किसी को और वह नया शिष्य बनता है तो सेवा के बारे में कुछ कोई चर्चा की जाती है तो सबसे पहले पूछता है कि सेवा क्या करें हम सेवा। तो आप सबसे पहले उसको कहिए कि आप जिस तरह से शिष्य हो गए हैं, आपको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिला है, तो आप भी ऐसे कोई जिज्ञासु को खोजिए जो इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान से जुड़ जाए। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सेवा में। स्वामी जी भी कहते हैं और स्वरवेद में भी लिखा हुआ है, ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, आ करे करावे ताही को। स्वामी जी ने देखिए कितनी दूसरी पंक्ति में लिखा, करे करावे, यानी जो सेवा कर रहा है केवल उसी का क्रेडिट नहीं है, उसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं नहीं, सेवा करने में जो आपका सहयोग किया उसका भी तो सेवा है। आपको सहयोग किया, आपको मान लीजिए कि सेवा करने के लिए आपको सेवा कलेक्शन करना है और कहीं जाना है, और मान लीजिए कोई गुरु भाई आया आपके पास, कहा कि चलिए हमारे पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, हमसे हमारे साथ चलिए, मैं आपको वहां पर पहुंचा देता हूं, उसका भी योगदान है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि करे करावे ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। हम लोग कैलिफोर्निया में मान लीजिए स्वामी जी का कार्यक्रम किए। यहाँ कार्यक्रम करने वाले में सिर्फ एक निरंजन जी थे और एक कृष्ण मुरारी थे। जब मैं 14 जून को यहाँ आया तो पता तो मुझे पहले से था ही, क्योंकि हमारे यहाँ स्वामी जी 28 मई को गए थे वहाँ ग्रेटर नोएडा हमारे आवास पर। तो स्वामी जी से इस चर्चा हुई थी और स्वामी जी ने हमको कहा था कि न्यू जर्सी में भी जाना है। तो हम बोले कि स्वामी जी वहाँ तो हम कैसे जाएंगे। तो स्वामी जी पूरा करक करके बोले कि नहीं, आपको न्यू जर्सी में अवश्य आना है। तो मैं इसलिए न्यू जर्सी में भी गया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो यहाँ की बात मैं कहना चाह रहा था, विषयांतर हो गया। तो कैलिफोर्निया में जहाँ स्वामी जी के कार्यक्रम का स्थल था, तो ये दो आदमी थे, निरंजन जी और कृष्ण मुरारी जी। मेरे को मुझे भी बहुत संशय हुआ, आशंका हुई कि ये दो आदमी मिल करके काम कर रहे हैं, कैसे इतना बड़ा काम होगा। सदगुरु का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है। तो देखिए इन लोगों ने जिस तरह से कार्य किया, ये प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, मैं इनकी सेवा से बहुत खुश हूं, इन लोगों की सेवा से। इन लोगों ने उस मंदिर से कंसर्न जितने भी अधिकारी थे, पुजारी थे, जो व्यक्ति थे, उन सभी लोगों के साथ इन लोगों ने समन्वय स्थापित करके और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सारे मंदिर के सेवक, मंदिर के पुजारी, मंदिर में के और सब विभागों में काम करने वाले लोग, सारे लोग इनके साथ हो गए और सारे लोगों के सहयोग से यह कार्य हुआ। स्वामी जी जब निरंजन जी के घर पर रुके थे तो सारे लोग स्वामी जी से दर्शन करने के लिए आए थे। और स्वामी जी का जो पुजारी थे मंदिर के, वो जब तक स्वामी जी आकर के अपने आसन पर नहीं बैठे तब तक वह वहां जमीन पर नहीं बैठे। देखिए उस पुजारी का क्या भाव था। पुजारी के अंदर तनिक भी अहंकार नहीं था
और सदगुरु के प्रति उसकी कितनी श्रद्धा और भावना थी कि जब तक स्वामी जी आकर के अपने आसन पर नहीं बैठे, हम लोग कहते रह गए कि आप अपना आसन ग्रहण करिए। वह अपना आसन ग्रहण नहीं किया, और जैसे ही स्वामी जी आए, वह संस्कृत के मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके स्वामी जी की सेवा में एक तरह से अभिवादन, अपना स्वागत प्रस्तुत किया, और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर महाप्रसाद करके और उपदेश लेकर के उन लोगों ने नामदेव जी के द्वारा जो उपदेश हुआ, उस उपदेश को भी उन्होंने ग्रहण किया, और तब वो लोग स्वामी जी को अंत में प्रणाम करके स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर के, ब्लेसिंग्स लेकर के, तब वो लोग गए रात में। तो उन लोगों के प्रति देखिए, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि करे करावे ताहि को सोई सेवा सिसना। जिसने कराया, जिसने इतना बड़ा कार्यक्रम कराने में निरंजन जी का और कृष्ण मुरारी जी का सहयोग किया, उसकी इतनी बड़ी सहभागिता रही, वह भी सदगुरु का सेवा का पात्र है और आशीर्वाद का पात्र है। सदगुरु उसको उसके बदले में भी उसकी सेवकाई को किसी न किसी रूप में लौटा देगा। सदगुरु सेवा, जो अभी आप सेवा करते हैं ना, आप इसको रखिए दिमाग में, आपकी सेवकाई कभी भी सदगुरु अपने पास रखता नहीं है। एक बार पलामू में हम संयोजक थे वहां के, तो स्वामी जी एक बार बोले, क्या, एक बहुत गरीब महिला थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, समझिए कि रहने का एक झोपड़ी भी नहीं था। तो वह स्वामी जी की लेकिन बहुत बड़ा मतलब कि श्रद्धावान सेविका थी, शिष्य थी, शिष्या थी। तो स्वामी जी उसके बारे में, जब वो स्वामी जी के पास आई स्वामी जी को प्रणाम करने के लिए, तो वो चली गई और हम भी वहीं पर थे। स्वामी जी बोले कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम बोले कि जी स्वामी जी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब महिला है, तो इसके ऊपर भी कृपा करिए प्रभु, ताकि इसकी दशा सुधर जाए। मैं स्वामी जी से उसके लिए प्रार्थना किया। तो स्वामी जी बोले क्या कि मैं इसको देना चाहता हूं, लेकिन कैसे इसको मैं दूं। देखिए स्वामी जी की वाणी को पकड़िए आप लोग। स्वामी जी ने कहा कि मैं इसको देना तो चाहता हूं, लेकिन इसको मैं कैसे दूं। मैं पास स्वामी जी की बात को समझ नहीं पाया, तो हम चुप हो गए। तब स्वामी जी फिर कहे कि यह कुछ देगी तब न हम इसको देंगे, तब न हम इसको देते। देखिए, पहले दाता शिष्य बने, दान में दे दे शीश, है ना, ऐसी मैंने दोहा आप लोग सुने होइएगा, पहले दाता शिष्य। शिष्य को जो है पहले आपको दान देना है, दाता बनना है आपको। कुछ तो आप सदगुरु को समर्पित करिएगा। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन स्वामी जी की लाचारी थी क्या कि कहे क्या कि मैं इसको देना चाहता हूं, लेकिन कैसे मैं इसको दूं, यह मुझे कुछ नहीं दे रही है। देखिए, मैंने स्वामी जी के भाव को उसके पास पहुंचाया कि तुम कुछ भी तो स्वामी जी को दो। तो वह बाद में आकर के स्वामी जी को कुछ बहुत कम पैसा किसी से मांग करके ले आई होगी या कुछ, तो उसने स्वामी जी को दिया। स्वामी जी अति प्रसन्न हुए। हो सकता है स्वामी जी इसको इस जन्म में नहीं दे, उसका जन्म जब होगा दूसरे जन्म में दे देंगे। सदगुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सेवा करते समय केवल सेवा का भाव होना चाहिए। कभी यह भाव नहीं होना चाहिए कि सदगुरु हमको क्या देगा इसके बदले में। वह सदगुरु समझता है, आप सदगुरु के ऊपर समझ जाइए। सदगुरु आपकी आवश्यकताओं को समझता है। सदगुरु यह समझता है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, सदगुरु समझता है। ये सदगुरु के ऊपर छोड़ दीजिए। इसीलिए सदगुरु जो है कहता है कि नहीं, धरती माता क्या है, धरती माता को हम लोग 100 बीज बोते हैं, और धरती माता उस 100 बीज के बीच में बदले में कितना करोड़ों बीज हमको धरती माता दे देती हैं। तो यही सदगुरु होता है। सदगुरु को आप दीजिए, कई गुना अधिक सदगुरु जो है आपको लौटा देगा, सेवकाई लौटा देगा। आपकी सेवकाई कभी भी सदगुरु रखता नहीं है। ऐसा सेवा का भाव होना चाहिए। तो और सेवा का धर्म जो है, सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोय, आ ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोए। सेवा से तो भक्त सदगुरु जो है आपके बस में रहता है।
ईश्वर योगी परम गुरु मैंने सदगुरु को कहा गया है। स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि ईश्वर योगी परम गुरु भक्त बसी पर सोए। वो सदगुरु तो भक्त के बस में हो जाता है। आपको सदगुरु को बस में करना है, सदगुरु को प्रसन्न करना है, तो सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक सदगुरु प्रसन्न नहीं होगा तब तक समझिए कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सदगुरु को प्रसन्न करना है, हम लोग का सारे शिष्यों का यही धर्म है। एक पंक्ति है स्वरवेद में, वह पंक्ति क्या है? यही जब मैंने सदगुरु की प्रसन्नता के बारे में कहा, बहुत सभी लोग इसको जानते हैं, सदगुरु की प्रसन्नता तब प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता तब यह ध्रुपद होए। यह सब तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी एक देखिए पंक्ति है स्वामी जी का स्वरवेद का, वो कहते हैं क्या कि मन प्रसन्न को नहीं करे। आदमी मनमुखी हो जाता है ना, तो उसी के बारे में कहते हैं क्या कि मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सदगुरु प्रसन्न। देखिए, आपका मन यदि कहता है कि आज सत्संग में मत जाओ, अगला रविवार को सत्संग में जाना, आज चादर ओढ़ कर सो जाओ, तो ऐसा कभी मत करिए। ये मन को प्रसन्न करने वाला काम हो गया। आप सत्संग में जाइए, मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सदगुरु प्रसन्न। इसमें तो कल्याण है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आप पकड़ लगाओ मन। तो स्वरवेद की पंक्ति है, यह मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं कि मन प्रसन्न को नहीं करे, कर सदगुरु प्रसन्न। इसमें तो कल्याण है, पकड़ लगाओ मन। मन को पकड़ो। तुम्हारे मन जो है क्या कह रहा है? मन यदि कहता है कि सत्संग में मत जाओ, मन यदि कहता है कि नहीं सेवा मत करो, तुम्हारे पास ये अभी कार्य है, इस कार्य को कर लो, तब तुम उस कार्य को करना। नहीं, यह मन आपका कह रहा है, तो आप ऐसा कदापि नहीं करें। आप ऐसा कदापि नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से सदगुरु प्रसन्न नहीं होगा। ये मन प्रसन्न को नहीं कर सदगुरु प्रसन्न। ये पहली पंक्ति को भी यदि हम लोग याद रखेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा हम लोगों के जीवन में। और जहां तक हम कह रहे थे प्रचार का, तो उसके लिए तो स्वामी जी कहे ही है कि ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जो काम। देखिए, जो काम जिसका है उसका, मान लीजिए हमारा कुछ काम है या आपका कुछ काम है, आपके काम को हम यदि कर देते हैं तो आप कितना प्रसन्न होइएगा मुझ पर। यह साधारण सी बात है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका कोई ना कोई बॉस है, बॉस ने आपको कुछ काम दिया है और के लौट किया है, आप उस वर्क को करते हैं, आपका बॉस आपसे प्रसन्न हो जाता है। तो इसीलिए सदगुरु का सबसे प्रमुख कार्य जो है और कठिन कार्य, सदगुरु का ब्रह्म विद्या का प्रचार सबसे कठिन है। आप इसको मानिए। आपके पास धन है, धन देना आसान है। आपके पास तन है, तन से सेवा करना आसान है, क्योंकि सब आपका है। लेकिन सदगुरु के ब्रह्म विद्या का प्रचार, सदगुरु के ब्रह्म विद्या का प्रचार सदगुरु का कार्य है। और इस ब्रह्म विद्या से किसको जोड़ना है? जो आज तक किसी दूसरी जगह से जुड़ा हुआ था, उसको वहां से हटा करके ब्रह्म विद्या से जोड़ना है। यह कितना बड़ा कार्य है, कितना कठिन कार्य है। जो आज तक किसी दूसरे कार्य को करता था, आप उस दूसरे कार्य को छोड़ करके कह रहे हैं क्या कि ब्रह्म विद्या के ज्ञान से जुड़ जाओ, और वह जुड़ जाता है। वह कितना बड़ा कार्य कर रहा है। इसलिए सदगुरु की प्रसन्नता इसमें है कि आप सदगुरु के ब्रह्म विद्या का कितना प्रचार कर रहे हैं। यही सदगुरु की प्रसन्नता का ये सब कारण है। और हम लोगों को यह सब याद रखना चाहिए, बराबर स्वरवेद का पाठ करते रहना चाहिए। सदगुरु की चिट्ठी जो है, जिसका पत्रिका हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आजकल तो इंग्लिश में भी निकलने लगा है। सबको हिंदी इंग्लिश की पत्रिका पढ़नी चाहिए और ब्रह्म विद्या का प्रचार करना चाहिए। पत्रिका से भी प्रचार होता है। आप यदि 10 पत्रिका 10 व्यक्तियों को देते हैं, कौन जाने कौन सा 10 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जो सदगुरु के ज्ञान से जुड़ जाएगा, तो ये आपकी कितनी बड़ी सेवा हो गई। तो इसलिए सेवा जो है, सेवा की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। सेवा जो है सदगुरु और शिष्य के बीच में, यही सेवा सेतु का कार्य करता है। और बराबर यह याद रखना चाहिए कि सेव्य भाव सेवक रहे, सेवक के अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत
आप लोगों का साधुवाद, आप लोगों को मेरे मैं तो आप लोग हमारे उम्र के तो आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आशीर्वाद ही आप लोगों को देता हूँ। उसके बाद मैं जय सदगुरुदेव कहता हूँ। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। Okay. Thank you, NP Uncle Ji. It was pure nectar for us. It was really very long time for us to have such kind of spiritual discourse with respect to seva, going through all the Sarved core verses with all of us, sharing your experience, sharing your sanspara and the actual seva behavior in all other Vihangam Yog souls, and bringing to us on this platform. It is really a great experience to be part of this satsang. So thank you so much for sharing with me. And हाँ। yeah, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हिंदी सत्संग पर भी ध्यान दीजिए। yeah, sure, आप sure. आप लोग तो This is हिंदी सत्संग को पहले करते ही थे, तो क्यों इसको? ठीक है, स्वामी जी के कार्यक्रम में आप लोग बहुत व्यस्त थे, लेकिन हिंदी सत्संग भी होना चाहिए। sure, जी sure. होता ही था आप लोगों का, जी, कोई जी, जी नया जी पर प्रारंभ थोड़े करना है। जय sure, सूर्य अंकल जी, उस, सुधांशु उस बोल रहा हूँ। हाँ। हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, संभवतः अगले सप्ताह से हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं अंकल जी, शनिवार को। हाँ, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जी 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 अंकल जी। that will be wonderful actually, because uncle ji was very curious to see that resume, and I think it will benefit a lot of people, and and maybe if the time becomes a little bit more um, So compatible with the West Coast also, yeah, maybe plus minus 1 hour. Well, not minus, plus hour, 1 hour. I think that may hopefully bring more people from here also. Yeah, Because that's the idea. where जी I need to talk to you separately, Niranjan ji. जी The जी जी Hindi जी satsang is mainly for West Coast only. I mean, the time we need to, take care as per your time. So I'll ping you after the satsang, जी and the जी जी time which will suit you, that time we will put for Hindi satsang. Because this point we had put during the meeting as well, that we will start the Hindi satsang as per the California time zone. जी, that will be wonderful, because while Uncle ji is here, this is a pure nectar, like Ravi ji was saying, and we want more and more people to really become more aware of the Brahma Vidya. Ji. And so yeah. So seeing the time, we are way past time, तो and यह टाइम तो सही है ना? 6 yeah. बजे का टाइम क्या? 6 बजे तो आदमी बहुत दिन हो जाता है। sir, just with good everyone. I want to make one introduction. So this is Amit. I'm calling from Seattle, Washington. So बोल रहा I है। just want to say that listening NP sir is always a pleasure for us, and we know him when he was deputed in Palamo district as SDO, and my dad and he worked together, and they know each other, and luckily my dad is also here. So the moment I heard that NP Uncle Ji is here, I immediately talked like last week, and they remember those days when they started prachar in Palamu and Jharkhand area. So luckily my dad is also here, so he also wants to say something. Last week he did not introduce because he was hesitant to speak English, but I said, okay, go ahead and talk in Hindi as well. So he is. सभी को जय सदगुरुदेव। Yes, okay. जय सदगुरुदेव विष्णु जी। सर आपका तो हमारे प्रति प्रेरणा का स्रोत आप तो बहुत हमारे रहे हैं। अरे आपको आपके और घर पर हम गए हुए हैं। जी जी जी, और सेवा का तो जो भाव रहता है उसके लिए तो कहना ही क्या है सर। अभी तत्काल के लिए मैं बता दूं आपको कि अभी आगामी जो अक्टूबर में शून्य शिखर आश्रम में जो कार्यक्रम होना है, तो उसमें हमारे क्षेत्र से 26 गुरु भाई सेवा में गए हैं सर। और माने सेवा का दया तो स्वामी जी हमारे क्षेत्र पर है ही। हमेशा सेवा का गुण जो है सो
प्रयास रहता है। अब तो थोड़ा सा हमारे साथ ये कुछ ये हो गया था कि ताकि माथे का ऑपरेशन भी हमारा कराना पड़ा था, तो उसमें भी स्वामी जी की बहुत बड़ी दया रही। स्वामी जी की दया हमेशा रहती है। मैं एकदम क्षमा चाहता हूँ, अभी 10 बज गया है और जी 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 अभी अब जी हम लोगों को सत्संग का समापन की ओर लेके जाना पड़ेगा ही। जी 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 क्षमा चाहता हूँ मैं उसके लिए। मैं जरूर हिंदी सत्संग के लिए I'll try my best working with Sudhanshu ji to coordinate Hindi satsang in the California time zone. yeah, But I'm sure. Thank really you so very much. sorry for that, Amit ji and Vishnu uncle ji and NP uncle ji. Hello. Sorry for that. So I would like to move to next last segment of the satsang. I would I'll thanks Jessica ji for your patience and please recite the last four line of the Santi part and let's conclude this session. Over to you, Jessica ji. Jai Gurudev, Shanti Path. He Prabhu Shanti Swarupa Ho, Shanti Shanti Maya Shanti, Shanti Shanti Jana Shanti Ho, Purna Shanti Maya Shanti. He Prabhu Shanti Pradana Kara, Nora Sarva Ashanti, Deva Sada Full Shanti Maya, Shanti Shanti Sukha Shanti. Boliye Sadgurudev Bhagwan Ki Jai. Thank you, Jessica ji, for sharing, for reciting the Santi part for us. And next we'll try to again come up with more interactive session again with the Navy satsang, and hope to see you all on Sunday satsang at 9 a.m. Eastern Standard Time. It will be English platform, and for Hindi we'll be working with all of with the core members to see how it can be organized in the California time zone. And till then, I'd like to wish everybody Jai Sarudev and may God watch over you.